Firstly, we will discuss about the oxygen therapy. Then we move towards the ventilatory part. Okay. So first of all, we have to categorize the ARDS patient. Okay, COVID patient. There is mainly a three category of the patient: mild, moderate, and severe. According to PaO2 level, we categorize the COVID patient into mild, moderate, and severe category. Okay. If patient PaO2 level, okay, PaO2 level will measure by the taking the ABG sample. Okay. So if PaO2 level is less than 100, so we put patient in the severe category. If PaO2 level is more than 100 but less than 200, then we put patient on the moderate category. If PaO2 level is more than 200 but less than 300, then we put patient in the mild category of ARDS. Okay. If patient is in mild category, okay, ideally we don't give any oxygen support to the patient. Okay. We mainly give the oxygen support to the patient in case of the moderate and severe case of the ARDS. Okay. Because nowadays there is also means scarcity of the oxygen. Okay, very much scarcity. Even in the any part of the India, there is very much scarcity of the oxygen. Okay, so nowadays we don't give any oxygen therapy to mild category of patient. Okay. First of all, we discuss about the nasal drum. It is a very basic instrument to give the oxygen therapy. Okay. It is very basic, okay, because it will give about 24% to 40% of the FiO2. You know about the FiO2, or I will discuss in detail. Okay. FiO2 is nothing. If you take room air, okay, it is how much of FiO2 of room air? It is 21%. It is nothing. 21% of the molecule in air is oxygen. Okay. So FiO2 is nothing. It is a fraction of the oxygen in the flow, any kind of air flow. Okay. So we use nasal probe, okay, to the mostly to the mild to moderate case of the ARDS patient. Okay, by which we can give up to 40% of the FiO2. Okay, according to flow, this is a flow meter. First of all, this is a flow meter. Okay, by which we can give the oxygen to the patient. We just attach this proximal end to the flow meter and we can give the oxygen to the patient. Okay. So if we set the flow from 2 liter to 8 liter in case of the nasal probe, we can give up 25% to 40% of the FiO2. Okay. This is a simple mask. Okay. This is a simple mask. Okay. Or you can say that this is a simple face mask, okay, by which we can give up to 40 to 60% of the FiO2. Okay, if we put patient on the flow of the about 5 liter, then we can give up to 40%, and if you increase the flow, then we give up to 60% of the FiO2 to the patient. Okay. Now this is a NRBM mask. It suggests non-rebreathing bed mask. Okay, this is a NRBM mask. Okay, this is a classical device. Okay, to give oxygen therapy. We put most of the moderate kind of ARDS patient on the NRBM mask. Okay, non-rebreathing mask. If we attach this this proximal end to the flow meter, distal end to the flow meter, and first of all, the oxygen will come into this bag. Okay, this bag will be filled fully. Okay, and then when patient inspired deeply, the air is coming from this bag. Okay, so by this instrument we can give up to 60 to 80% of the FiO2. Okay, so in ICU patient, especially a moderate kind of patient, we use NRBM mask. Okay. This is a flow meter. Okay. We attach this flow meter to the central line of the O2 with श्रेडर सॉकेट. ओके, श्रेडर सॉकेट होता है जो आप देखते हैं ना, जो दीवार पे वो लगे होते हैं, ठीक है, तो उसको श्रेडर सॉकेट बोलते हैं. ओके, उसमें ये फिट हो जाता है. ठीक है, फिर हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इसमें जो इंडिकेटर है मिनिमम और मैक्सिमम यूज करेंगे तो पेशेंट को इरिटेशन होगा. ठीक है, so we must fill this flow meter with simple water. Okay,
and maximum level, between the minimum and maximum level. Okay. And simply we rotate the knob by which we can give the different different flow of oxygen to the patient. Okay. This is a Raman ventilator, Raman 1 ventilator, ठीक है, by which we can give the patient the HFNC. HFNC means, anyone know? This is the high flow nasal cannulation, or otherwise we can also say that it is a HFNO, high flow nasal oxygenation. Okay, this is a very good method to treat the ARDS patient. Okay, because by the HFNO we give the very high flow to the very high flow of the oxygen to the patient by the nasal cannula. Okay, and by using this high flow we can give PIP to the patient. Okay, PIP is nothing, it is very crucial in case of the ARDS, because what is the full form of PIP? Anyone know? Positive and expected patient. It is very crucial for the ARDS patient. Okay, because in ARDS you already know that in ARDS there is much more collapsible and consolidate alveoli is present. Okay, by giving the PIP to the patient we can open this alveoli, so oxygenation of the patient is improved, and there is a major treatment part of the ARDS patient. Okay, PIP is a very much important. Okay, so by this HFNO we can give up to 5 to 6 centimeter of H2O of PIP to the patient, by which patient's alveoli, the collapsible alveoli can be opened. Okay? So patient oxygenation may be improved. So this is a cannula of HFNO. इसको सिंपली जैसे हम नेजल प्रोंग रखते हैं ना, वैसे ही रखना है, ठीक है, नाक में, लेकिन इसमें फ्लो बहुत ही ज्यादा होगा. नेजल जो हमने बोला था, नेजल प्रोंग जो रखते हैं इसमें हम कितना यूज करते हैं, 2 लीटर to up to 8 लीटर, ठीक है, लेकिन इसमें जो फ्लो जाता है वो 40 लीटर to 70 लीटर तक का होता है. ठीक है, तो वो फ्लो की वजह से एक्चुअली उसमें पिप जनरेट होती है. ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, ये भी हम मॉडरेट काइंड ऑफ पेशेंट को रखने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, पहले पेशेंट कोई भी आता है, ठीक है, तो उसको मिनिमल ऑक्सीजन, वी ट्राई टू डिलीवर मिनिमल ऑक्सीजन, बिकॉज उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होने देना है. ठीक है, अगर उसको मेंटेन रह रहा है नेजल ब्रोंक से तो हम उसको हायर मोड पे नहीं जाने देंगे. ठीक है, नेजल ब्रोंक से रह रहा है मेंटेन तो नेजल ब्रोंक पे ही रखेंगे. फिर नहीं मेंटेन कर रहा है, पेशेंट का रेस्पिरेशन ब्रीदिंग उसका डिटोरिएट हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है और सैचुरेशन डाउन हो रहा है. ठीक है, देन वी पुट द पेशेंट ऑन द हायर मोड. ओके, सो उसके बाद हम फेस मास्क पे रखते हैं, फिर एनआरबीएम मास्क पे, अगर उस पर भी नहीं मेंटेन करता फिर हम HFNO यूज करते हैं. ठीक है, और उस पर भी नहीं करता तो फिर हम बाइपेप मोड यूज करते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. आपकी अगर आईसीयू में ड्यूटी आती है, ठीक है, तो आइडियली आपके साथ कोई ना कोई रेसिडेंट होगा जिसको सब कुछ ये सब कुछ आता होगा. ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, ठीक है, वार्ड में कि सर्वेंट कम होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ कम होता है, तो उसमें है ना पेशेंट को कई बार कुछ चीजें, कई सारे पेशेंट आपको राउंड जब आप लेते होगे या फिर आपका काम कर रहे होगे, पेशेंट बोलेगा मेरे को प्यास लग रही है, ऐसा बोलेगा, तो आपको ये मास्क सब कुछ रिमूव करके उसको पानी भी पिलाना पड़ सकता है. ठीक है, इट इज अवर ह्यूमैनिटी. ओके, हम ह्यूमैनिटी के खातिर, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें कभी भी खर्च करना पड़ता है. ठीक है, कई बार हम लोग भी आईसीयू में राउंड लेते हैं तो वहाँ पे स्टाफ अगर यूटिलाइज है, कम है स्टाफ, तो अगर पेशेंट मांगे कुछ भी तो उसको देना है, ये एक फॉर ह्यूमैनिटी. ओके, तो तब ये मास्क को हमें निकालना और फिट करना आना चाहिए, बाइपेप मास्क. वो क्यों इतना क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से फिट नहीं किया है, ठीक है, मास्क को, तो उसको पेशेंट को अच्छी तरह से वॉल्यूम डिलीवर और फिट डिलीवर नहीं होगा. ठीक है, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट होगा वो स्टेगनेंट हो जाएगा. ठीक है, वो नहीं होगा. तो ये अच्छी तरह से फिट होना चाहिए बाइपेप मास्क. ठीक है, और अगर आपने बहुत टाइटली फिट कर दिया है तो पेशेंट को प्रेशर शोर हो सकता है. ठीक है, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट और पेन भी होता है. ठीक है, तो आपको ना तो ज्यादा टाइट बांधना है बाइपेप मास्क, ना तो ज्यादा ढीला रखना है. ठीक है, ढीला रखोगे तो लीक होगा. ठीक है, और फिर डिलीवर नहीं होगा उसको. ठीक है, और वॉल्यूम भी डिलीवर नहीं होगा. टाइट कर दिया तो प्रेशर शोर और पेन होगा. ठीक है, तो बाइपेप मास्क, ये बाइपेप मास्क है. ठीक है, पेशेंट की
पेशेंट के फेस वाइज इसके मींस नंबरिंग होता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। फीमेल पेशेंट में हम 3 जिसका वेट मोर देन 100 है और ओबेस है पेशेंट, ठीक है, उसमें हम 5 नंबर का मास्क यूज करते हैं, ठीक है। ये हार्नेस है, ये एक्चुअली अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। हार्नेस को कैसे बांधना है, ठीक है। ये अपर हार्नेस है, ये लोअर है, ठीक है। ये मास्क ऐसे फिट होगा, ठीक है, पेशेंट के ऊपर, और ये हार्नेस पीछे रहेगा, ठीक है। इसको इतना टाइट करना है सिर्फ कि लीक ना हो, ठीक है। लीक ना हो उतना टाइट करोगे तो इट इज ओके, ठीक है। ठीक है, ये वेंटिलेटर है, उससे ये बाइपेप मोड दे रहे हैं अभी पेशेंट को, ठीक है। आपको बाइपेप मोड के बारे में डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, ओके। अगर आपकी आईसीयू पोस्टिंग आती है तो उसमें रेसिडेंट हो गए आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताने के लिए, और वो सेटिंग जो होता है बाइपेप का वो आइडियली रेसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आपकी ड्यूटी मोस्टली जो मीन्स आएगी वो, ठीक है, तो वो हेल्थ जो मीन्स नॉर्मल सेंटर है जहाँ पे सिंपली हम एनआरबीएम मास्क पे वो पेशेंट रखते हैं, वहाँ पे ऐसे जगह पे ड्यूटी आएगी ज़्यादा। और अगर आईसीयू में ड्यूटी आई तो आपके साथ रेसिडेंट हो गया आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक सिखाएंगे क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है, ओके। डीप में आपको वहाँ पे हो गए रेसिडेंट को सिखा देंगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस क्या है। कोई रेसिडेंट अगर कुछ मांगे या कोई डॉक्टर कुछ मांगे कि भाई ये लेके आओ बाइपेप मास्क लेके आओ, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको बोलते हैं बाइपेप मास्क, ठीक है, और उसको कैसे बांधते हैं, ठीक है, पेशेंट के पेट के ऊपर, ठीक है। अब ऑक्सीजन थेरेपी जैसे बोला हमने, ठीक है, माइल्ड केस में अभी नहीं देना है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो पेशेंट को कब ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। इफ पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 30, इफ पेशेंट सैचुरेशन मींस SpO2 इज लेस देन 92, then we will start the oxygen therapy to the patient, okay, for the better improvement, okay. Because if patient saturation is low beyond 92, then patients above involvement or severe involvement, but it can be seen in the CT scan, okay. So if patient has breathlessness, saturation is below 92 or respiratory rate is more than 30, okay, patient is tachypneic, then we will give the patient the oxygen therapy, okay. जैसे बोला पेशेंट पहले नेजल प्रोब में स्टार्ट करना है, ठीक है। नेजल प्रोब में जब उसका मैक्सिमम लेवल आ जाए फिर भी नहीं कर रहा है पेशेंट मेंटेन, और पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, ठीक है, तो हम फेस मास्क पे देंगे, फिर एनआरबीएम पे लेंगे, फिर HFNC देंगे, ठीक है। HFNC पे नहीं रहता है पेशेंट तो फिर बाइपेप, ठीक है। अब आईसीयू वाले पेशेंट में आपकी ड्यूटी आएगी, ठीक है। तो आईसीयू में थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, ठीक है। सारे पेशेंट मींस कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे सब, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में आपको इंट्यूबेशन के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आइडियली बाइपेप तक तो ठीक है, ठीक है, बाइपेप तक नॉन इन्वेजिव, लेकिन जब इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली इमरजेंसी इंट्यूबेशन। इमरजेंसी इंट्यूबेशन में टीम वर्क चाहिए थोड़ा, ठीक है। कोई अकेला इंट्यूबेशन नहीं कर सकता, उसको 2 या 3 लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो तब आपका रोल भी क्रुशियल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पता होगा इंट्यूबेशन के बारे में, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंट्यूबेशन में, तो कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप हेल्प कर सकते हो, जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्टर वहाँ पे है उसको आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्यूबेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये ET ट्यूब है, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली जो फीमेल पेशेंट होती है उसमें हम 7 और 7.5 की ट्यूब डालते हैं, मेल पेशेंट होता है उसमें हम 8.5 या 9 की ट्यूब डालते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं होता, वो आपके एक्सपीरियंस से भी आता है, आपको कितना वोकल कॉर्ड ओपनिंग है वो देखना है, और फिर अकॉर्डिंग टू वोकल कॉर्ड ओपनिंग आपको वो ट्यूब डालनी है, कौन से नंबर की डालनी है, ठीक है। तो ये ET ट्यूब है, ये यूजेबल फॉर डिस्पोजेबल ट्यूब है, ठीक है, PVC की बनती है ये ट्यूब, ठीक है। अगर पेशेंट जो आप नॉन इन्वेजिव मेडिकेशन दे रहे हो बाइपेप से, ठीक है, और PaO2 लेवल कम रह रहा है, लेस देन 60 है पेशेंट का PaO2 लेवल, ठीक है, इवन ऑन द बाइपेप मोड ऑफ वेंटिलेशन, पेशेंट का सैचुरेशन कम है, पेशेंट को डिस्टिक हो रहा है, ठीक है, पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्यूबेशन के लिए मेन ये ET ट्यूब्स है, ठीक है। ET ट्यूब्स को डालने के लिए क्या चाहिए, लेरिंगोस्कोप चाहिए, ठीक है। ये लेरिंगोस्कोप विथ ब्लेड है, ठीक है। अगर आपको मांगे रेसिडेंट लेरिंगोस्कोप चाहिए, लेरिंगोस्कोप है, ये देना। इसमें 3 और 4 नंबर की ब्लेड आती है, ये 4 नंबर की ब्लेड है फॉर मेल पेशेंट,
और 3 नंबर की ब्लेड आती है वो फिर फॉर फीमेल पेशेंट होती है, ठीक है, वो थोड़ी छोटी होती है इससे, ठीक है। तो लेरिंगोस्कोपी करके हम, ठीक है, और लेरिंगोस्कोपी कैसे कर रही है वो आइडियली मिनी दिन पे हम सिखाते हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग। लेकिन अभी आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंट्यूबेशन में लेरिंगोस्कोपी करते हैं हम, ठीक है, और फिर वोकल कॉर्ड ओपनिंग देखते हैं और ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। अब वो डालने के लिए ऐसे तो नहीं डाल सकते पेशेंट में, पेशेंट ऑलरेडी इतना टिकनिक होता है और इतना एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है। तो पहले हम उसको इंडक्शन एजेंट देते हैं, ठीक है, आइदर प्रोपोफॉल, केटामिन, वो देके हम पेशेंट को मीन्स सुला देते हैं, ठीक है। फिर हम अगर पेशेंट का लगे कि भाई पेशेंट का डिफिकल्ट हो सकता है इंट्यूबेशन, ठीक है, ऐसा कुछ, हम मसल रिलैक्सेंट भी ट्राई करते हैं, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट दे देंगे तो हमें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, इंडक्शन एजेंट और मसल रिलैक्सेंट। लेकिन कई बार अगर सिर्फ इंडक्शन एजेंट देने के बाद पेशेंट का रिफ्लेक्स सारे चले जा रहे हैं, ठीक है, और यू कैन कंफर्टेबल, देन you will do the intubation with only induction agent, okay. There is no any means guideline to whether you can use muscle relaxant or not, but ideally in ICU patient we ideally don't give the muscle relaxant. If needed, if it is mustly needed, then and then only we give the muscle relaxant, okay. इसको मीन्स ट्यूब डालने के बाद भी जो हमारा ये वेंटिलेटर मशीन था, ठीक है, जो जिससे हम बाइपेप दे रहे थे उसमें ही वो सेटिंग आते हैं, ठीक है। उसमें प्रेशर कंट्रोल मोड आता है, वॉल्यूम कंट्रोल मोड आता है, ठीक है। तो हम उसमें वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे पेशेंट को रख देते हैं, उसको 5 to 6 ml per kg जो उसका एवरेज बॉडी वेट होता है पेशेंट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो सेट करके वॉल्यूम सेट करके पेशेंट को वॉल्यूम और पीक सेट करके रखते हैं, ठीक है। पीक आइडियली सारे पॉइंट्स में एक पीक हर बार आएगा, ठीक है, क्योंकि पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द ARDS पेशेंट। जो पेशेंट ठीक होते हैं वो आइडियली मोस्टली पीक की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अगर उसका मीन्स इन्वॉल्वमेंट लंग का इतना गंदा हो गया है कि पेशेंट लेवल अगर कंसोलिडेट हो गए हैं और फाइब्रोसिस में चला जा रहा है पेशेंट, तो फिर पीक का भी कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जब आप पेशेंट को इंक्यूबेट करके रखते हो तो उसके पैरामीटर सारे आते हैं, प्लेटू प्रेशर आता है, पीक प्रेशर आता है, वो सब कुछ देखते रहना। अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, आपको वॉल्यूम कम करना है, ठीक है, फिर भी नहीं पेशेंट रह रहा है तो आपको ऐसा मान के चलना है कि उसको पेशेंट को एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो रहा है पेशेंट को लंग में, ठीक है। ऐसे पेशेंट का आउटकम भी पुअर होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही डिटेल में वो आपको बेसिक चीजें ही अभी सीखनी है, ठीक है, और डिटेल में नहीं सीखना है। और ये HME फिल्टर है, ये भी आपको थोड़ा एक बार देख लेना, याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। ये एक्चुअली हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर बोलते हैं। और इस अभी जो नए वाले जो आ रहे हैं उसमें HME फिल्टर के साथ बैक्टीरियल वायरल फिल्टर भी होता है, उसको HME-BV बोलते हैं, HME-BV। उसमें वो मॉइस्चर और हीट को तो प्रिवेंट मींस लॉस को प्रिवेंट करेगा ही, लेकिन वायरस को भी बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इट इज फॉर आवर सेफ्टी, ठीक है, मेडिकल पर्सन जो वहाँ करें, क्योंकि आप ICU में देखो तो सारे पेशेंट मोस्टली सारे पेशेंट बाइपेप पे होते हैं या फिर इंट्यूबेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो पेशेंट में ना एरोजोल बहुत ही ज़्यादा जनरेट होता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन एरोजोल से ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एरोजोल इतने सारे एरोजोल्स होते हैं बोर्ड, ठीक है, ICU बोर्ड में, तो ये इसको प्रिवेंट करेगा, वायरल फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो वो जो भी पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, उसको फिल्टर करने के बाद ही बाहर छोड़ेगा, तो वायरल तो हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, ठीक है, वायरल फिल्टर। और ये HME फिल्टर बेसिकली ये किसके लिए होता है कि आप पेशेंट को जब भी रखते हो, ठीक है, वेंटिलेटर पे, ठीक है, तो वो क्या होता है उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जब वो एक्सपायर करेंगे तो आपकी हीट मॉइस्चर दोनों लॉस होता है, ठीक है। तो ये है ना, उसमें एक हाइड्रोफोबिक लेयर होता है, जो पहला वाला होता है ना वो हाइड्रोफोबिक लेयर होता है बाहर, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक लेयर होता है ना, वो उसको लॉस नहीं होने देगा, तो इट गिव्स द सूदिंग इफेक्ट टू द पेशेंट एयर में, ओके। वरना क्या होगा, पेशेंट को ड्राइनेस होगा एयर में, कफिंग करता रहेगा पेशेंट और उसको डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, मॉइस्चर और हीट को लॉस होने, ठीक है। ये फ्लो सेंसर है, ये पेशेंट के जो पैरामीटर्स है वो सेंस करके आपको बताएगा पेशेंट कितना मीन्स कितने % एफआर को डिलीवर कर रहा है मशीन, पेशेंट उसमें कितना टाइडल वॉल्यूम ले रहा है, पेशेंट का प्लेटू प्रेशर क्या है, पिक एयरवे प्रेशर क्या है, वो सब कुछ ये सेंस करके मशीन के अंदर एक सेंसर होगा,
वेंटिलेटर मशीन के अंदर, ठीक है। तो वो मशीन वो आपको सब बताएगा, ठीक है। ये ओरल एयरवेज है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आपका पेशेंट को आपने इंट्यूबेट किया, ठीक है, लेकिन पेशेंट च्यू कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट। आप दे रहे हो उसको सिडेशन विडेशन, लेकिन आपको उसको एक्सट्यूबेट भी करना है, उसको ट्यूब निकालनी है, तो आप सिडेशन उसको नहीं दे सकते अपने पास, ठीक है। पेशेंट च्यू कर रहा है ट्यूब, ठीक है। तो पेशेंट अगर च्यू कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आप टाइडल वॉल्यूम सेट कर रहे हो वो डिलीवर नहीं होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो ट्यूब होती है उसको चबा रहा होता है पेशेंट, ठीक है। तो ये ओरल एयरवे है, उसको हम पेशेंट अगर च्यू कर रहा है ट्यूब तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी डाल सकते हैं। दूसरा, इसके बीच में देखिए ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये उसके अंदर से हम सक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को ये जो ओपनिंग है वहां से हम पेशेंट के अंदर जो माउथ में जो सिक्रीशन है उसको सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को एस्पिरेशन प्रिवेंशन होगा, ठीक है। तो सक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, वाइस प्रिवेंट भी करता है। और कई बार हम लोग अगर पेशेंट को जब हम इंट्यूबेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम जब भी इंजेक्शन एजेंट देते हैं ना तो पेशेंट को टंग खोल होता है, जो टंग होता है वो पीछे चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप वेंटिलेट नहीं कर सकते पेशेंट, कई बार स्पेशली ओबेस पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओबेस पेशेंट में आप जैसे ही सीडेट करोगे पेशेंट को टंग खोल हो जाता है, आप वेंटिलेट नहीं कर सकते, तो हम ये ओरल एयर में डालते हैं तो वो टंग खोल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और आप अच्छी तरह से वेंटिलेट कर सकोगे जब तक कि आप इंट्यूबेट नहीं करोगे, ठीक है। इसको आइजल बोलते हैं, ठीक है। पिछले 5 या 7 साल में कोई ग्रेट इन्वेंशन हुआ हो ना तो ये आइजल है, ठीक है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मान लो कि कई बार ऐसा होता है, ऐसा रेयरली होता है क्योंकि मोस्टली तो आईसीयू होगा वहाँ पे कंसल्टेंट होता है 24 आवर्स, ठीक है। तो इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होगा तो भी कंसल्टेंट कर देगा वो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इंट्यूबेशन भी नहीं कर सकते, आप जब स्कूपी करते हो तो कुछ नहीं दिखेगा, एपिग्लोटिस नहीं दिखेगा, वोकल को कई बार ऐसा होता है, ठीक है। रीजन कोई भी हो सकता है, पेशेंट का लेरिंग्स है वो इंटीरियर हो तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट ओबेस है, ठीक है, शॉर्ट नेक है, पेशेंट का माउथ ओपनिंग कम है, फिर पेशेंट का जो गर्थ है नेक गर्थ वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कई बार डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है, ठीक है। अंदर कोई ज़्यादा मेजर सिक्रीशंस है, आईसीयू वाले सारे पेशेंट को हिपेरिंग जाता होता है तो अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन से अगर आप इंट्यूबेशन नहीं कर सकते हो तो आपके पास एक वेंटिलेशन का चांस रहता है कि आप अगर वेंटिलेट कर पा रहे हो तो आपको इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इंट्यूबेट भी नहीं कर सकते और वेंटिलेट भी नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है कोई बार, ठीक है। तो ऐसे केस में हम आइजल फिर यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको पेन की तरह पकड़ना है आइजल को, ठीक है, जैसे लिखते हैं ना पेन पकड़ना है, पेशेंट का माउथ ओपन करना है और जो इसका पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल होता है ना, हार्ट पैलेट से लेकर पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना अंदर डालना है, फिर एंगल ऑफ मैंडिबल से पकड़ना है ये डिवाइस को और अंदर पुश करना है, तो एक रेजिस्टेंस जाएगा, सिंपल। वो एक्चुअली आप डालोगे तभी पता चलेगा, ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक ब्रीफ रेजिस्टेंस जाएगा तब आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है, और फिर छोड़ देना है इसको। तो इसमें ना ये थर्मोइलास्टोमर मटेरियल होता है, ये वाला जो है ना वो थर्मोइलास्टोमर होता है। उसका मीनिंग क्या होता है थर्मोइलास्टोमर मीनिंग, ये जब हीट के संपर्क में आएगा ना, हीट होगा ना, हमारी बॉडी की हीट होगी, ठीक है, तो हीट की वजह से है ना वो अपना शेप चेंज कर देता है। तो जो भी पेशेंट का जो लेरिंग्स का जो ओपनिंग है उसके अकॉर्डिंगली वे सील कर देता है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा ये उसका शेप मीन्स हर व्यक्ति में सेम सा शेप नहीं होता है, ठीक है, लेरिंग्स फिर भी ये सील हो जाएगा, ठीक है, इस मटेरियल की वजह से, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे फिर वेंटिलेटर को लगा के फिर आप पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, ठीक है। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा ये पोर्ट दिया है वो आरटी डालने के लिए है, ठीक है। आप आरटी भी डाल सकते हो इससे, तो ये डालने के बाद आप वेंटिलेट भी कर सकते हो और आरटी भी डाल सकते हो, ठीक है। एक अच्छा डिवाइस है। अब ये अभी अम्बू बैग है, ठीक है, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है, ठीक है। अब आइडिया है ना, ये
बाकी लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसको मानी जाती है। क्यों भाई? देखो कुछ भी होगा ना, अगर ऑक्सीजन गया ना, कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है। अभी देखो जिस तरह से क्राइसिस चल रही है, ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन चला जा सकता है, ठीक है। आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होगा आपके पास जिससे आप वेंटिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिवाइस जितना सिंपल दिखता है उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग ओटी करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कई बार ऑक्सीजन जैसे चला जाता है, ठीक है, कोई भी रीजन से। तो ये यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, उसको वेंटिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर से अपने शेप में आ जाएगा। इसको जब हम कंप्रेस करते हैं ये 1 वे वाला होता है, ठीक है, और यहाँ से एयर एंट्री होगी और फिर जैसे ही छोड़ोगे तो ये अपना फिर से ये शेप ले लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वेंटिलेट किया, फिर छोड़ दिया तो वापस से भर गया, ठीक है। तो इससे हम वेंटिलेट कर सकते हैं पेशेंट, कम से कम हम 21% तो डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। अगर ऑक्सीजन चला गया तो कम से कम 21% तो जाएगा ही जाएगा इससे, ठीक है। इसमें 2 एक्सटेंशन भी आते हैं। देखो एक है ना, यहाँ पे जो ऐसी रिजर्वर बैग है ना, ये वाली, उस तरह की रिजर्वर बैग यहाँ पे लगती है, ठीक है, तंबू बैग में। और ये जो पोर्ट है ना, वो ऑक्सीजन का पोर्ट है, ठीक है, जो जैसे बोलते हैं ना ऐसे। देखो एक हैंड यहाँ पे लग गया फ्लोमीटर में और एक हैंड हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे अगर रिजर्वर बैग होगी तो ये दोनों मिलके अबाउट 90% तक डिलीवर करते हैं, ठीक है, FiO2 90%। ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है कि अगर आपका वेंटिलेटर बंद हो गया अचानक से, कोई रीजन से वेंटिलेटर बंद हो गया, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, तो आप ये यूनिट से आप उसको कम से कम 21% तो दे ही सकते हो। अगर आपके पास फिर ऑक्सीजन सिलेंडर है, फटाफट आपने ले लिया और ये ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे रिजर्वर बैग है, तो आप 80 to 90% तक डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा डिवाइस है, ठीक है। अब ये इसको टी-पीस बोलते हैं, ठीक है, टी-पीस। अब ये एक्चुअली क्या कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब पेशेंट को हम वीन करते हैं, ठीक है। तो वीन क्या होता है, चलो आपने, आपका पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, आपने इंट्यूबेट कर दिया पेशेंट को, ठीक है। अब आपने 1-2 दिन तक पेशेंट को सिडेशन दिया, मसल रिलैक्सेशन दिया, पेशेंट को स्टेबलाइज किया, ठीक है। अब आपने पेशेंट को फिर से वो जो ट्यूब डाली हुई है वो निकालनी है, ठीक है। पेशेंट के सारे वाइटल पैरामीटर ठीक है, पेशेंट का RS भी इंप्रूव हो गया, उसका सैचुरेशन भी अच्छा रह रहा है, PO2 भी अच्छा है। तो आप धीरे धीरे उसको जो आप दे रहे हो मसल रिलैक्सेशन सिडेशन को बंद करना है और पेशेंट को धीरे धीरे जो आपने अपग्रेडेशन किया था, ठीक है, उसको डाउनग्रेड अप करना है। आपको जो FiO2 है वो डिक्रीज करते जाना है, फिर को थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करते जाना है। फिर पेशेंट को आपको CPAP मोड पे रखना है, ठीक है। उसमें क्या होता है CPAP मोड में, किसी एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, उसका नाम ही है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो उसमें मशीन है ना सिर्फ फ्लो देगा उसको, जो आपने सेट किया होगा ओके, प्रेशर सपोर्ट, वो सपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो कंटिन्यूअस फ्लो देगा, ठीक है। इट इज मिनिमल सपोर्ट होता है। तो उसके बाद हम पेशेंट को ये जो ट्यूब होती है ना, उसके बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो भी हमें देना है 2 लीटर 4 लीटर वो लगा देंगे। अगर पेशेंट इस पे भी मेंटेन कर रहा है अच्छी तरह से, उसको सेचुरेशन नॉर्मल रह रहा है, टिकिटनिया नहीं हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं है, all other vital parameters are stable, then we extubate the patient. Extubate means वो ट्यूब को निकालने की जो प्रोसेस करते हैं हम लोग, उसको एक्सटूबेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइडियली बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। और कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में जो हमें बेसिक जानकारी चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नॉलेज अभी होना चाहिए। अब जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, आप जाओगे ड्यूटी करोगे तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। इसमें से किस किस लोगों ने ड्यूटी की है